everyone. Welcome to the first lecture on reading comprehension, and this is a lecture based on the keyword corollary. पहले ज़रा समझते हैं what we are going to cover throughout these sessions. So our reading comprehension questions comprises of these keywords. These are the type of question that you can expect. कोई भी क्वेश्चन है वो इन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही है. आफ्टर रीडिंग द पैसेज द क्वेश्चन इज समवॉट बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स. सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू फिगर आउट कि अगर कीवर्ड है क्रक्स, then how do we approach those passages? Or if the keyword is corollary, like in this particular lecture, then what should be our approach while attempting questions based on this part? All of these are known as directive words, which help us to think in a particular manner. Alright, let's start with the first one, that is corollary. And let's understand the meaning of corollary. So it is defined as an idea formed from something that is already proved. तो कोई चीज़ है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उससे आप कोई चीज़ डिराइव कर रहे हो. It is basically a natural consequence or a result that flows naturally. For example, suppose a person has diabetes. Alright. अब this person starts consuming sugar, more and more sugar. तो जैसे इसका शुगर इनटेक बढ़ेगा, it is obvious and it's a natural consequence that this person's diabetes would also worsen. किसको प्रॉब्लम होगी. It's a natural consequence. Or let's suppose we have a railway track, और इस ट्रैक पे we have a train approaching. Isn't it obvious कि if a person steps on this railway track and a train is approaching, so this person will be hurt? So this is a natural consequence of your action, something that is already proven. If a person is standing on this track and a train is approaching, this person will definitely be hurt. So it's a natural consequence which flows naturally. That is the meaning of corollary. अब इस पे बेस्ड जो PYQs हैं उन पे ज़रा नज़र डालते हैं. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. ओके, नाउ generally corollary based passages are not very lengthy. These are on the shorter end, corollary based passages. Now this is a question from the year 2017. देखते हैं. Over the last decade, Indian agriculture has become more robust with record production of food grains and oilseeds. Increased procurement consequently has added huge stocks of food grains in the granaries. India is one of the world's top producers of rice, wheat, milk, fruits, and vegetables. India is still home for a quarter of all undernourished people in the world. On an average, almost half of the total expenditure of nearly half of the household is on food. Okay. अब तरीका क्या है? दिस इज़ कॉमन फॉर एवरी आरसी क्वेश्चन कि आप जब पैसेज पढ़ रहे हो, दिस इज़ अ ईजियर वन, इस पे वो चीज़ें हेल्प भी नहीं करेंगे. बट अगर एक लेंदी पैसेज है तो जनरली आप कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो व्हाइल यू आर एक्चुअली रीडिंग द पैसेज. जैसे यहाँ पे अंडर नरिश्ड, इंडिया इज़ होम फॉर क्वार्टर ऑफ अंडर नरिश्ड, ऑन एवरेज हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ half of the household is on food. ठीक है, ये बेसिक हमारे पास डेटा है. ऑलराइट, आप इसको साथ में रीड कर सकते हो. दिस विल डेफिनेटली हेल्प. नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कोरिलेटर? इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि शायद यहाँ पे एक या दो ऐसे वैल्यूज़ हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, लॉजिकली फॉलो कर रहे होंगे, बट इट इज़ आस्क्ड मोस्ट लॉजिकल. तो इन दैट ऑल्सो वी हैव टू पिक विच वन इज मोर लॉजिकल. ठीक है. नाउ, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फार्म टू फोक वैल्यू चेन इज नेसेसरी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड malnutrition.
ओके, समझते हैं ज़रा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. व्हाट इज़ फार्म टू फोक वैल्यू चेन? फार्म टू फोक वैल्यू चेन इज़ कि अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज़ टेकन केयर कि वो एक्चुअली कंज्यूमर तक जा रहा है. फार्म टू फोक, ये वैल्यू चेन इज़ दिस, कि जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्चुअली में कंज्यूमर्स के पास जा रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है. The efficiency of this, increasing the efficiency of farm to fork value chain is necessary to reduce poverty as well as malnutrition, which is a case for India. India is still home for a quarter of undernourished people in the world. तो इंडिया की ये प्रॉब्लम है. आप कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो? थ्रू दिस. ये कहीं ना कहीं इस पैसेज से डिराइव हो रहा है और ये नेचुरली इस पैसेज से डिराइव हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए आंसर हो सकता है. फिलहाल मैं इसको टिक कर रहा हूँ, मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ. क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये दिस कुड बी अ पॉसिबल कोरोलरी, बट वी हैव टू इवैल्यूएट ऑल द अदर ऑप्शंस. इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. क्या कह रही है कि अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इट विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन. इज दिस ट्रू? सोच के देखो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर लोगे तो विल दिस रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड पोवर्टी? थिंक अबाउट इट. नहीं करेगा ना, सिंपली बिकॉज व्हाट इज़ द गारंटी कि आपने अगर प्रोडक्शन करा है तो वो एक्चुअली तक कंज्यूमर तक जा रहा है. टेकिंग एन एग्जाम्पल, मान लो मेरी कंपनी है, मैं क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ और मैं इसको फॉरेन मार्केट्स में सेल कर दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. तो ये इंडिया का जो प्रॉब्लम है पोवर्टी का एंड माल न्यूट्रिशन का, ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है. मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ. इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आई होप आपको आइडिया लग रहा है क्यों ये फॉल्स है. ओके, मूविंग अहेड. India's agricultural productivity is already great and is not necessary to increase it further. क्या ये लॉजिकल कोरोलरी है? बिल्कुल नहीं है. ओके, अब देख सकते हो ये लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है. कहीं पे इसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन है कि इंडिया productivity is great and it's not necessary to increase it further. No, it is necessary because India is still home for quarter of undernourished people. तो ये बोलना कि it is not necessary, this part is ruling the statement all throughout out. लास्ट वाले को देखते हैं. Allocation of more funds for social welfare and poverty alleviation programs will ultimately eliminate the poverty and malnutrition in India. This could also be a possible fit. अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी है. ओके, तो अभी ज़रा इसको ब्रेक डाउन करते हैं. ये तो नहीं हो रहा है, आई नो दिस, तो आई एम रूलिंग दीज टू आउट. नाउ एलोकेशन ऑफ मोर फंड्स फॉर सोशल वेलफेयर. अब इसमें बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, नॉट जस्ट वन रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन, वो भी एक पार्ट है, बट यू हैव अदर स्कीम्स एज वेल, बहुत सारे. तो ये कहीं ना कहीं इसके एंड पे नहीं हो रहा है. तो अल्टीमेटली एलिमिनेट द पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, मोस्ट लॉजिकल नो, ड्यू टू दिस पार्ट. Increasing the efficiency of farm to fork value chain, yes, is necessary to reduce the poverty and malnutrition. Option A is the most logical corollary. I hope you're getting an idea on to how to attempt these questions. We'll try to do one more question. ठीक है, चलो. This is from the year 2021. In India, the objective of macroeconomic policy is to enhance economic welfare of the people. And any one wing of such macroeconomic policy, be it monetary or fiscal, cannot independently work without active support of the other. तो क्या कह रहा है कि the objective of macroeconomic policy is to enhance economic welfare of the people. ठीक है, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इसके बहुत सारे विंग्स हैं. जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा 2 विंग्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल. तो दीज 2 विंग्स कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क
विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ वन अनदर। तो अगर मान लो ये सारे विंग्स हैं किसी एक बॉडी की, तो अगर ये इसको एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। दिस इज व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी टू द गिवन पैसेज। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, central bank, monetary policies are controlled by the central bank, fiscal policies are controlled by the government, the two wings, they cannot work independently। ये कहीं ना कहीं दिस इज द बेस्ट कोरोलरी। ठीक है, फिलहाल के लिए दिस इज लॉजिकली फॉलोइंग, डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, आपको कुछ चीज़ डिराइव करनी होती है। तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। We know the central bank takes care of the monetary policies and the government is taking care of the fiscal policies. These two wings cannot work independently of each other. Yes, this is a possible fit, possible corollary. Next देखते हैं, government should regulate financial markets and institutions closely। अगर स्टेटमेंट को आप इंडिविजुअली देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पैसेज कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, यस ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है। But does this statement relates with the passage? It has nothing to do with the passage. ये स्टेटमेंट खुद में सही है, ये बोलना कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, दैट इज राइट थिंग टू से, बट इससे ये रिलेट नहीं हो पा रहा है, इससे ये नेचुरली डिराइव नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज रूल्ड आउट। Market economy is not compatible with the socialist policies of the government. Again, the same thing. Not related to the passage. Now, financial sector reforms are required for enhancing the economic welfare of the people. Yes, financial sector reforms are required for enhancing the social welfare of the people. ये सही है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स करने चाहिए। अब ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल आंसर्स हैं। अब आपको ज़रा कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट सूटेड कोरोलरी है। तो आप देखते हो द बेस्ट सूटेड कोरोलरी फॉर द गिवन पैसेज इज नॉट द लास्ट वन बट द फर्स्ट वन। ऑप्शन ए अगेन इज आर करेक्ट फिट। चलो, मूविंग अहेड, दिस यू टेक दिस एज होमवर्क, ट्राई टू डू दिस, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द ईयर 2019। मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन। इसी तरीके से विल कम अप विथ मोर आरसी पैसेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, उनके थ्रू विल ट्राई टू केटर कि कहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।